Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. मोहसिन, आप काफी टाइम बाद दिखाई दे रहे हो मोहसिन. हाँ सर, सॉरी सर, वो एग्जाम था सर मेरा, तो उसका थोड़ा बिजी था उसमें. अच्छा, चलिए गुड. हम ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले थे कल. दैट इज caselet with will take into consideration. We will take into consideration problem number 30 and 31 studying this caselet. देख लेते हैं इसके अंदर क्या है. CEO of ABC Telecom Limited is in quandary since he received a telephone call in morning. Am I audible now? Clear? Yes, sir. Yes sir. In quandary since he received a telephone call in the morning from his counterpart at Element Telecom Limited. Both companies were engaged in bitter experience a couple of years ago that they had attempted to merge with the intention of creating a behemoth telecom company, possibly the largest in the world. The merger had fallen through due to the opportunistic behavior on the part of Mr. Das, then CEO of LMM. During the time the merger talks were taking place, Mr. Das had also approached a few other suitors for LMN in an attempt to force ABC to pay a higher price. Further, there were reports of attempts by management of LM to scuttle the deal. Back then, ABC had also faced stiff competition to the deal from one of its largest shareholders. Since then, a lot has changed for both the companies. The bleak economic conditions due to recession has led to a drastic fall in market value of both companies. With ABC comparatively losing much more in terms of market value, raising money has become more difficult for both companies, especially for LMN. On brighter side of ABC, the opposing shareholders had recently sold off his stakes. Shareholder had recently sold off his stake to another investor who had earlier supported the original merger deal with the LMN a couple of years ago. एक बार फिर से देख लेते हैं केस को. ABC टेलीकॉम कंपनी के CEO वो थोड़ा परेशानी में है. एंड सिंस ही रिसीव्ड द टेलीफोन कॉल, उनको सुबह में एक टेलीफोन कॉल मिला अपने काउंटर पार्ट से एलिमेंट टेलीकॉम जो एलिमेंट टेलीकॉम कंपनी का लिमिटेड से है. दोनों कंपनी का एक एक्सपीरियंस कुछ साल पहले का बड़ा खराब एक्सपीरियंस था, जिसमें वो दोनों ने एक इंटेंशन शो किया था मर्ज करने का, जिससे कि वो बहुत ही बड़ी कंपनी टेलीकॉम कंपनी बन सके, पॉसिबली द वर्ल्ड की लार्जेस्ट. मर्जर कुछ एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर, मिस्टर दास जो CEO थे एलएमएन कंपनी के, उनके अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर की वजह से टूट गया था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मर्जर टॉक्स वर टेकिंग प्लेस. जब बातें चल रही थी मर्जर के लिए, मिस्टर दास हैड आल्सो अप्रोच्ड फ्यू अदर suitors for LMN in an attempt to force ABC to pay a higher price. कुछ एक दूसरे जो सूट होल्डर्स थे, मतलब जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे मर्जर के में, या कंपनी को ABC को लेना चाहते थे, उनसे अप्रोच किया in an attempt to force ABC to pay higher price, कि वो ABC हायर प्राइस पे करे. मतलब LMN को खरीदना कोई और भी चाहता होगा, तो कुछ इस तरह से उन्होंने रोपिंग किया होगा. Further, there were reports of attempts by management of LM to scuttle the deal. डील से बचने की भी कोशिश के अटेम्प्ट किए थे LM मैनेजमेंट ने. Back then, ABC had also faced stiff competition to deal. उसी टाइम पर जो एक बहुत बड़ा शेयरहोल्डर्स थे ABC के अंदर, उनसे भी ऑपोजिशन मर्जर के लिए ABC का मैनेजमेंट फेस कर रहा था. तब से काफी कुछ चेंज हो चुका है दोनों कंपनी के लिए. काफी खराब इकोनॉमिक कंडीशन रिसेशन की वजह से रही है, और दोनों कंपनीज के मार्केट वैल्यू में काफी बहुत ज्यादा गिराव आया है.
with ABC comparatively losing much more in terms of market value. और ABC का जो market value वो comparatively ज्यादा गिरा है और उनके लिए पैसा रेज करना दोनों कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और LMN के लिए स्पेशली. ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ ABC, ओपोजिंग शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर पहले मर्जर को अपोज कर रहे थे, उन्होंने अपना स्टेक दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया है जो पहले LMN के साथ मर्जर होने वाली डील को सपोर्ट कर रहे थे कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले. ये प्रॉब्लम है, ये केस लेटर है. दिस इज द सिचुएशन. अब उसके बाद which of the following would be the most appropriate lines of thought for CEO of ABC to adopt in response to offer by LMN? Which of the following would be most appropriate lines of thought of CEO of ABC to adopt in response to the offer by LMN? LMN की तरफ से जो ऑफर आया है ABC के CEO को के लिए मोस्ट appropriate line of thought क्या हो सकती है? One, once bitten twice shy. Once bitten twice shy. And there is simply no way I can think of resuming talks with LMN after their unethical behavior the previous time around. One, I'm sorry, I would rather spend my time on merger discussion with other companies. Second, the deals may make less business sense this time around. However, if it goes through, I will become the CEO of world's largest telecom company. So let's try our luck once more. Third, I will resume talks only if they provide guarantee as to the reimbursement of our expenses incurred in the event of deal not materializing. Fourth, let me not be biased against a deal with LMN if we can secure the deal at a reasonably low price benefiting our shareholders. Let us go ahead with it. Fifth, I'm not sure if we can raise the money now. If in any event there are ones facing greater financial problems, so let's not hurry now. We might have opportunity to buy them out in a cheaper price later. Once bitten twice shy. समझिए इसका मतलब क्या, वो कुछ समझ के बताओ. Once bitten twice shy. There is simply no way I can think of resuming talks with LMN after their unethical behavior the previous time around. I would rather spend my time on merger discussions with other companies. LMN से पहले ही धोखा मिल चुका है ना, उनसे बात करने का, रिज्यूम करने का कोई सरल तरीका है नहीं ना. और बेहतर ये होगा कि हम दूसरी कंपनी से मर्जर के बारे में बात करें, जो ABC कंपनी की CEO. Second, deal may make less business sense this time around. इस टाइम पर डील करना comparatively less business sense है. However, if it goes through, अगर ये जाती है, it will become कंपनी का के वो वर्ल्ड किरण म्यूट कर लो माइक प्लीज. अरे किरण, पढ़िए और बताइए जरा. हाँ, the deal may make less sense this time. ठीक है, कोई बात नहीं. I will resume talks only if they provide guarantee as to the reimbursement of expenses incurred. अगर हमारे जो भी खर्चे होते हैं इस बात की वो गारंटी देते हैं, तब मैं बात रिज्यूम कर सकता हूँ. और उस केस में अगर डील मटेरियलाइज नहीं होती है, ठीक है. Let me not be biased against deal with LMN के से डील के केस में मुझे बायस नहीं होना चाहिए. If we can secure deal at a reasonably low price,
अगर हम डील पर रीजनेबली लो प्राइस पे सिक्योर कर लेते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। आई एम नॉट Sir, श्योर। हाँ, ये फोर्थ वाला ऑप्शन में तो ऐसा लग रहा है कि ही हैजंट लर्नड एनीथिंग, मीनिंग कि उसको कुछ सीखना भी तो चाहिए जो भी उसके एक्सपीरियंस हुआ है, और उसको अभी मार्केट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो आई थिंक फिफ्थ वाला सही है, क्योंकि उसको लाइक फर्स्ट वाले में तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसका ईगो वाली भी प्रॉब्लम आ गई है, इफ आई एम रीडिंग इट राइट or not reading into it too much, but I think fifth one is the right one. Fifth. I'm not sure if सर we मुझे तो there is 50 money लग रहा now. है। In any event, they are the ones facing greater financial problems. So let's not hurry now. We might have an opportunity to buy them at a cheaper price later. यस सर, ये Fourth करंट सिचुएशन से रिलेट भी करता है, और वो जो लास्ट टाइम उनके साथ हुआ था उसके साथ भी डील करता है, तो इवन आई थिंक इट्स द फिफ्थ ऑप्शन। So this way that company will learn a lesson also. अब यहाँ पर जो But बोर्ड sir, fourth भी मेरे को ठीक लग रहा है, because एक मतलब to not be biased against dealing with LMN is the right option if both the companies are going through a loss ना इधर, and अगर वो एक reasonably low price पे अगर deal कर पा रहा है दूसरी कंपनी के साथ, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल ही होगा। बट उसे कंसिडर तो करना चाहिए ना कि वो एक एथिकल पर्सन नहीं है, तो बायसनेस तो रखनी ही चाहिए। एंड फिफ्थ वाले में सही है, वो भी टाइम लेगा एंड फिर डिसीजन लेगा जब उसको उनका प्राइस सही लगेगा। हाँ, उसमें भी वो चीप प्राइस, तो उसमें भी उसका प्रॉफिट हो ही जाएगा फिफ्थ वाले में भी, बिकॉज ही इज सेइंग ना ही विल बाय देम आउट एट चीपर लेटर। और सर ऐसा कहीं ऐसा मेंशन तो है नहीं कि उसको जल्दी है, इज देयर अ मेंशन कि उसको जल्दी जल्दी लेना ही है कुछ, कि वो हाथ से ऑफर निकल जाएगा अगर किसी और ने ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी? If there is a specific mention of that, then we should buy अभी से ही, वरना fifth one is a good option. The fifth one is a good option, but fourth one also makes sense. I mean, if we can secure the deal at a reasonably low price, benefiting our shareholders, I find it very reasonable. सर ऑप्शंस फिर से दिखा दीजिए। मतलब कॉशन वर्सेस कॉशन रखना है ना। कॉशन की बात है कि पहले उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इस वक्त दोनों कंपनी की हालत जो है वो खराब चल रही है। देखिए इनको कंडीशन क्या मतलब रेशनल अप्लाई करोगे आप इसके अंदर, डिसीजन कैसे करोगे इसे रेशनलाइज कि दोनों ही कंपनी की हालत अच्छी तो नहीं चल रही है। लॉट हैज चेंज बोथ द कंपनीज, इकोनॉमिक कंडीशन रिसेशन की वजह से मार्केट वैल्यू दोनों कंपनी की बहुत खराब हुई है,
with ABC comparatively losing much more in terms of market value. ABC की market value comparatively ज्यादा नीचे गई है. Raising money उनके लिए काफी difficult, दोनों कंपनी के लिए difficult रहेगा, especially for LMN. LMN के लिए ज्यादा रहेगा. On the brighter side, ABC जो पहले एक स्टेक शेयर होल्डर थे, उन्होंने अपना स्टेक जो है वो दूसरे इन्वेस्टर को बेच दिया है, जो ओरिजिनल मर्जर डील के फेवर में थे. अब इसके बाद ये आती है कि एक तो बिहेवियर था पुराना मिस्टर दास का, उस बिहेवियर को क्या बिजनेस प्रैक्टिस में अगर सर आपकी आवाज नहीं आ रही. उसको दिमाग में रखना कुछ है ना, जो इनका कोई भी ऐसा बायसनेस रखना जो पुरानी जो भी उनके बीच में रहा है कि उन्होंने धोखा दिया या उनका बिहेवियर अनएथिकल रहा, उसको ध्यान में रखने को याद करके डील को ना किया जाए. जबकि अगर डील एक बार साइन हो जाती है तो उसके बाद अगर सारी चीजें चेक हो जाएं और डील साइन हो जाए और डील प्रॉफिटेबल हो तो कोई बुराई नहीं है करने में, है ना, पहली चीज. सर क्वेश्चन में वो लिखा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट लाइन और ब्रैकेट में एसपी लिखा है, तो एक से ज्यादा भी चूज कर सकता है क्या? लाइंस ऑफ थॉट वो नीचे भी है क्या? अरे हाँ एग्जैक्टली सही तो है. हाँ सही है. लाइंस है ना. तो अब इसमें देखना है हमें कौन सा इसमें रेस्पॉन्स होगा. फिर तो ई है फिर सर क्लियरली. फोर्थ एंड फिफ्थ है ना, ये ही डायरेक्टली ज्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए और रीजनेबल है. एक मिनट, कितनी देर चला? सर वैसे अगर प्रायोरिटी and में देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सर पहले फोर्थ आना चाहिए फिर फिफ्थ आना चाहिए. कुछ आइडिया लगा कितना? एक सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं है? करीब 15. हाँ कॉन्ट्रडिक्टिंग तो है, लेकिन पहले ये है ना कि मतलब अगर जैसे देखा जाए तो फोर्थ वाले में उन्होंने बोला है कि चलो ठीक है, मतलब जो अभी सर ने पॉइंट बोला था ना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो पहले तो यही देखना चाहिए. एंड अगर फिफ्थ से भी आप But श्योर हो अगर तो वो- एक ही ऑप्शन में है. देयर आर फोर्थ के साथ कोई और कॉम्बिनेशन भी है. वन, अच्छा फोर्थ के साथ सेकंड भी है. फोर्थ के साथ सेकंड में डील्स सर सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं है सर, वो तो लक के ऊपर बात कर रहा है. business sense at the time around if it goes I will bring so नहीं, लक वाली बात पर तो नहीं काम कर सकते. और फर्स्ट फोर्थ है के सर, फर्स्ट भी साथ नहीं है. फिफ्थ है. फिफ्थ तो ठीक ही है ना बिल्कुल, और वो एक ही ऑप्शन में है तो यही होगा फिर. तो फिफ्थ में तो ठीक ही है, उसमें तो कोई. If I am not sure if we can raise money now in any event, they are one the facing greater financial problem. So let's not hurry now. We might have opportunity to buy them out at the cheapest level. सर वैसे तो फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी रोल्ड आउट. हाँ सर फर्स्ट और सेकंड रोल्ड आउट इनको कंसीडर नहीं करना चाहिए. हाँ, फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर नहीं करना चाहिए. ये ऑप्शन डायरेक्ट है. अब ऐसी सिचुएशन में अगर मान लो दोनों की कंपनी की स्थिति खराब चल रही, कोई किसी को धोखा देके क्या ही कर लेगा, है ना, खुद की हालत खराब है ना. यही लग रहा है तो जो है आप चेक करिए आंसर फटाफट. ध्रुव, किरण, मेहर, सत्यम. सर मैं तो ये बोल रही हूँ. हाँ चेक करिए आंसर. कौन चेक करेगा? जरा चेक. सर सत्यम चेक करेगा. सत्यम चेक सर करेगा. आंसर चेक कर लिया. क्या है? ई है ई. ये next, the merger of ABC and LMN has been confirmed with a detailed negotiation with LMN holding the majority share of the resultant entity. ABC और LMN का merger confirm हो गया है after detailed negotiation with LMN holding the majority share of the resultant company. LMN holding का जो है majority share रहेगा जो कंपनी बनेगी उसके अंदर. LMN has financed the merger by taking debt at higher than market interest rate from its banker.
एलएमएन ने जो मर्जर हुआ है उसमें फाइनेंस कराया है और जो कर्जा लिया है वो मार्केट रेट में जो मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे ज्यादा पर लिया है बैंकर से, in the hope that it would be able to streamline operations and reduce cost in the resultant entity, which will allow it to repay the loan. है ना, उसको लगता है कि वो ऑपरेशंस को अच्छी तरह से चला लेगा, कॉस्ट को कम कर लेगा, रिजल्टेंट एंटिटी जो बन के जो दोनों के मर्जर से बनेगी और वो धीरे धीरे करके कर्जा जो है वो चुका देगा. If you were the investor looking to invest in telecom companies, which of the following could be the strongest reason for staying away from investing in the resultant entity? आप अगर इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहें इस टेलीकॉम कंपनीज में, तो आपके पास कौन सा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होगा इस तरह की जो एंटिटी बन करके तैयार होगी उसमें इन्वेस्ट करने से, कौन सा ना करने का? स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर स्टेइंग अवे. The new entrant in the telecom market were coming with better offers for the customers. The market would be as competitive as ever for the resultant entity, thus providing no guarantee for success. Combined management did present have any grand strategies to investors. Combined management did have any grand strategies to the investors. The ABC's management was giving in to the Mr. Das, who was a known opportunist. LMN was using high cost debt to purchase another company in the same industry facing similar problems with no visible advantage for the company combined entity over competitors. ठीक है, इसका आंसर मत ही देखो तो ज्यादा अच्छा है ना. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 30. डॉट वो जो डेट इक्विटी रेशियो जो इन्होंने बनाया, कॉस्ट का जो कॉस्टली लिया है, फिर कोई खास उनका दोनों कंपनी परेशानी में कोई विजिबल एडवांटेज नहीं है, तो ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 29 एंड 28 26 और ये read the following case and choose. इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ. See, read the following case and choose the best alternative. Question number 26, 27, 28. 3 questions हैं इसमें. Ranjan Tughlaq, the youngest cabinet minister of elected coalition, glanced through the notes prepared by his secretary regarding the recent controversies on racket, the popular game of the country, while International Racket Association. यहाँ तक हमने कर लिया, याद आ रहा है आप लोगों को? Ranjan Tughlaq, the youngest cabinet minister of newly elected coalition, glanced through the notes prepared by his secretary regarding recent controversies on racket, the popular game of the country, while International Racket Association (IRC) has agreed to implement drug testing code promoted by World Athletic and Games Federation. A racket club which controls the entire racket-related activities, unlike any other sports and games of the country, had some reservations regarding the initiative. Majority of the citizens waited for the international competition eagerly and were fanatical about the country's participation in them. As a result of the popularity of game, 70% of total revenue associated with the game originates from the country. Hence, Rackets Club high bargaining power with IRC. Am I audible? हाँ जी, बोलिए. सर हम ये कर चुके पहले. हाँ हाँ, सर. ये कर चुके हैं. हम ये डॉक्यूमेंट हम पूरे ही कर चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना. अब 2 डॉक्यूमेंट हैं वो अब पूरे ही हो चुके हैं. तो व्हाट एल्स वी नीड टू डू? अब और क्या करें, किया जा सकता है? और हाँ, वैसे अब आप लोग ना मॉक दो, वो ज्यादा बढ़िया है. अब आप लोग ना ये डिसीजन मेकिंग का मॉक आप लोगों के लिए ओपन होगा, उसको आप मॉक अटेम्प्ट कीजिए. ठीक है, इज इट ओके?
सारी तरह की प्रॉब्लम Yes, हम sir. डिस्कस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट बहुत पुराने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ओल्डेस्ट ऑफ द ओल्ड जो अवेलेबल आर्काइव में, सारे कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हम एक बैंड, एक ओरिएंटेशन या कहिए कि लाइन ऑफ थॉट वो डेवलप हो गया है। इक्का दुक्का में प्रॉब्लम हो सकती है एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो अब कुछ रिसोर्स बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए। व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिपीट, बट रिपीटिंग इमीडिएटली विल अगेन, रिपीटिंग अगेन विल नॉट हेल्प दैट मच, सिंस हमें वो पहले ही फ्रेम ऑफ बना हुआ होता है ना। रिपीटेशन करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे, 2-4 दिन बाद, 2-3 दिन रुक करके, है ना। मीनवाइल मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का कुछ एक जो अब नवंबर मंथ का है,